Hi everybody, good morning. I see some, okay, many participants already here. Well, rest will join subsequently. Just guys, please in the chat box confirm if I am clearly audible, my screen clearly visible. Okay. Just please remind me what we were doing last. We were doing some introduction with R. We were talking about vectors and vectors. हमने एलोकेशन देखा था, वेक्टर एक्सेस करना, उसका इंडेक्स एक्सेस करना, and then I sent you a practice code also. I hope you ran it. Yes, Devesh, indeed the fact I'm not very well, but the job has to be done. Anyway. गाइस जरा बताओ कि कौन सा लाइन पे हम रन कर रहे थे उस समय लास्ट, जहां पर हमने छोड़ा था, बता देंगे? परहैप्स इंडेक्सिंग. वेरी फाइन, थैंक्स. इसे ये तुम्हें भी नहीं पता? हाँ, ब्रेक में यू बिकम लेजी. 1:30? I don't think so. Okay. Okay, very fine. So this was all basic thing. Last we were talking about, जहां पर हमने बात खत्म किया था. Okay, now I recall. I left you with a question that what can be the possibility of having another kind of column in my data. डेटा में तीन तरह के कॉलम हो सकते हैं जो हमने देखे थे. न्यूमेरिक कॉलम हो सकता है लाइक एज, सैलरी, प्राइस, एसेंशियली नंबर्स. और देयर कैन बी, और कैसा हो सकता था, कैरेक्टर कॉलम लाइक दिस, सिटी ऑफ वर्क ऑफ अ पर्सन. For R it has been a couple of classes monthly, not way too much. It was just installation and just the very basics. But as I can see, I think it is already started because the code has been done before, right? This code, nitty-gritty of that, that's what I'm saying. Just introduction to our just basic fundamentals we have done. Okay. So how I will be able to understand, because if I miss the basic. Let me bother about that.
पैसे दे दिए ना तुमने दामिनी को, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो दूसरा कॉलम कुछ ऐसा हो सकता था, एसेंशियली कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, ऐसा भी आ सकता है, कोई कॉलम ऐसा भी हो सकता है। देन वी वॉट, एक कॉलम ऐसा भी हो सकता है लाइक ट्रू एंड फॉल्स, इस टाइप का भी आ सकता है। No, it's not about how much I teach you, Sumit. It's about how much you study, how much you gather from that. वो काफी है। ठीक है, locale we checked class and we realized it is logical, बिल्कुल होना भी चाहिए था। So there are three major data types: numeric, character, and logical. There is a table function, क्या करता है ये, रन करके देखा आप लोगों ने? यार पहले तो यही बताओ, तुम लोगों ने रन भी करके देखा है कुछ के नहीं? There was a 3 days gap. कुछ रन किया है कि नहीं किया? I mean, you can be honest. I can understand. And this is not to judge you. अगर नहीं किया है तो वो बता दो कि नहीं किया है। I'm asking this to know, understand whether I should repeat this thing. If you have done it already, I will move to something else. If you have not done, then we will talk about it. शुभम एंड मानसी, आपका मेरे को समझ आता है, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। देवेश नहीं किया है, सुमित नहीं किया है, ओके, दैट्स प्रेटी ऑनेस्ट ऑफ यू, वेरी फाइन। टेबल फंक्शन क्या बता रहा है? टेबल, इट इज जस्ट टेलिंग यू that in this vector what is repeated how many times, essentially frequency. ठीक है, तो ट्रू कितनी बार आया है, फॉल्स कितनी बार आया है, किस ऑर्डर में आया है, इट इज नॉट कंसर्न अबाउट दैट, बट इट इज टेलिंग यू फ्रीक्वेंसी, विच कैटेगरी इज repeating how many times. Then I left you with a question, can there be any other data type? क्या कुछ और पॉसिबिलिटी है? एक वेक्टर ट्रू फॉल्स हो सकता है, एक वेक्टर लाइक सिटी नेम हो सकता है, एक वेक्टर नंबर्स हो सकता है, क्या और भी कोई टाइप का वेक्टर हो सकता है? So Shubham and Mansi, when I say vector, I am talking about a column in a database. That's such a pleasant surprise to see that the newcomers are answering. Wow, good. Okay. And okay, just before I move any further, again Shubham and Mansi, you don't have to switch on your mic every time. You can just respond in the chat box, and that will do. I keep a constant eye on chat box. When I say about vector, I am talking about a database. Suppose I have a database of employees. So there may be employee name A, B, C, whatsoever. Then their employee's age, they must be having some age. Then I am keeping which city they work in, city of work. ऐसा भी कुछ था. We saw Delhi, maybe Mumbai, maybe Pune, and so on. Then there is a column in this data which is locale.
which says whether this employee is working in the city of his residence only. If this particular employee working in this city is local of this city also. So that is true and false and true. They are recording it like that. Now the question is, I am asking, there can be three types of columns, which I am saying: numbers, alphabets, essentially strings, collection of alphabets like this city name, or logical. Logical means true or false only, two value possible, nothing else. Now my question was, can there be any other column possible other than numbers, other than characters, other than logical? Is there a column possible? Yes, there is possibility. The possibility of mix and match of these things. Mix and match of numbers, character, and logical. For example, for the same database, they are recording shift of the employee. जिस शिफ्ट में ये एम्प्लॉय आता है वो शिफ्ट भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं हर एम्प्लॉय के लिए। और कैसा कर रहे हैं? एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है हु राइट्स शिफ्ट लाइक 1 2 3। सेकंड अल्फाबेट सेकंड देयर इज अनदर डेटा एंट्री ऑपरेटर हु इज अ फैन ऑफ रोमन नंबर्स। और रोमन नंबर्स को एंटर करने के लिए कीबोर्ड पे क्या मिलेगा उसको? रोमन नंबर तो होता नहीं कीबोर्ड पे। Essentially, they have to be entered as characters. Yes. Now it is a mix and match of numbers and characters. ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेट्स सी, अगर मैं ऐसा वेक्टर बनाऊं तो क्या होगा? बन गया वेक्टर, and we print that vector, and what do you notice? Something noteworthy here? Someone can apprise? Nobody. You notice that these numbers, which were not, which were entered as numbers actually, now they are coming with double quotes. Realize that these double quotes mean something. This is R's way of telling you that they are no more numbers now. Now they are characters. If you check the class of this vector, we see that it is character type vector now. Now, why is this happening? This happens because of data type preference, we call it. Not only are all the programming languages follow data type preference. If there is a mix and match, then first data type preference will be for character, second to numeric, and last is logical. ध्यान रहेगा, अगर मिक्स एंड मैच हुआ, सपोज तीनों का मिक्स एंड मैच हुआ,
कहीं कैरेक्टर आ रहा है, कहीं नंबर आ रहा है, कहीं लॉजिकल आ रहा है, तो फर्स्ट डेटा टाइप प्रेफरेंस विल बी कैरेक्टर, दिस वेक्टर ओवरऑल विल बिकम कैरेक्टर। अगर न्यूमेरिक और लॉजिकल का मिक्स एंड मैच हुआ तो हाईएस्ट डेटा टाइप क्या है इस वेक्टर में? न्यूमेरिक। एंटायर वेक्टर विल बी कॉल्ड न्यूमेरिक। I'll take question just in a moment. I want let you to realize. Keep an eye on the comments. मैंने कमेंट भी छोड़े हुए हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए. I want you to run these three by yourselves. Just realize what is happening. This is a set of values. Small c से combine हो गए, यानी क्या बन गया ये? बोर्ड मास, ब्रैकेट्स, स्मॉल c से ये एक वेक्टर बन गया होगा. नाउ दिस इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, नाउ इट हैज बिकम अ वेक्टर. और वेक्टर के अंदर वैल्यूज कैसी हैं? मिक्स एंड मैच. और उस वेक्टर की मैं क्लास जानना चाहता हूँ. रन इट बाय योरसेल्फ, सी व्हाट हैपेंस. न्यूमेरिक, हाउ कम न्यूमेरिक? ओके, फाइन. लॉजिकल, सुमित, you are talking about the last line, I believe. So I hope you realize now what's happening. It was a mix and match of logical, number and character. जैसे ही कैरेक्टर आ गया तो सब कुछ अब कैरेक्टर ही होगा. Everything is in highest data type. It was mix and match of what? Logical and number. Higher data type, number. और लास्ट में बचा वो गरीब, लॉजिकल क्लास का. हाँ, जब और कोई नहीं है तो लॉजिकल ही होगा. ठीक है. मिक्स. शुभम, ये इसलिए समझ नहीं आ रहा बिकॉज यू डोंट परहैप्स, अभी बात नहीं हुई है इसकी. द सी फंक्शन, दिस इज टू कंबाइन. आई एम सेइंग दीज आर ऑल वैल्यूज. इस पैरेंथेसिस का मतलब होता है आई एम गिविंग इट टू अ फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन नेम इज सी. सी स्टैंड्स फॉर कंबाइन. so these three values are combined in a linear structure, just like a column in a database. ठीक है जी, करेक्ट. तो एक ऑर्डर फॉलो करेगा. अगर मिक्स एंड मैच हुआ वैल्यूज का तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इट. मूविंग ऑन टू वेक्टर ऑपरेशन. Operations in the sense, Shubham and Mansi, you may feel that you are not connecting. It is confusing, but still I'll highly suggest stay with me, so that जब मैं रिपीट करूंगा ना आप लोगों के लिए अलग से जिस समय भी क्लास लूंगा, तो everything of this will make sense then. So just what I mean to say is, don't try to understand everything. Don't try to fit in everything. Everything may or may not gel, but just try to stay focused.
Try to keep your attention. Just that. Just that. Yes, शुभम, अगर तीनों प्रेजेंट हैं या जो भी प्रेजेंट है, यू सी, प्रेजेंट कोई भी हो, जो भी उनमें से हायर डेटा टाइप वाला प्रेजेंट होगा, एक भी प्रेजेंट हुआ तो सब कुछ उसमें ही चला जाएगा। एवरीथिंग विल बिकम, अगर एक भी कैरेक्टर प्रेजेंट हुआ तो सारे कैरेक्टर बन जाएंगे। अगर कैरेक्टर एक भी नहीं हुआ तो सेकंड चॉइस इज नंबर। तो डिपेंड्स ऑन के मिक्स एंड मैच किस वैल्यू का है। Yes, Richter, drop please. Maybe switch on your mic if it is a quick question. Okay. Now, what's vector operation we want to see? First of all, let's see indexing of vector. We call it indexing, यानी लोकेशन की बात कर रहे हैं। We want to access a particular element of vector, not entire vector, just the particular vector. Untitled part. Now, what is that supposed to mean? Please mention it clearly. Don't give me riddles here. Where is untitled? What is untitled? Drop the line number. No? Yes, when you have pasted it, you have to save this file. Like this is an untitled file. I have typed in something here. Just Control S and save it somewhere. Okay, fine. ठीक है, तो indexing essentially means I want to index a particular element. Suppose this is a vector. It contains 4 values, 5, 8, 14, 10, just like that. And I want to index its third element, not entire vector. What if I want to, अगर मैं माई वेक्टर लिख के प्रिंट कर देता हूं तो सारी वैल्यूज आ जाती हैं। अब मैं कह रहा हूं मेरे को सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। और कौन सी चाहिए? So that we represent by square brackets. No, Siddharth, vector is linear structure of values. Either you can think of it like a column, or yes, maybe a row, even that. But no, it is not table yet. बात करेंगे अभी। स्क्वायर ब्रैकेट याद रहेगा इससे। पैरेंथेसिस मींस फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट मींस इंडेक्स यानी लोकेशन। विदाउट रनिंग इट, कैन यू टेल मी कौन सी वैल्यू आने वाली है इससे? आई वांट टू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट, स्क्वायर ब्रैकेट में 3। सम से 10, सम से 14। हाँ, ये 10 वाले वही हैं जो सी पढ़ के या जावा पढ़ के आए हैं।
तो गाइस अगेन समथिंग स्पेसिफिक टू आर. बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या होता है, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0, दैट दिस इज एलिमेंट नंबर 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. सभी लैंग्वेजेस में ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को. इट इज नॉट सो इन आर. आर में सिंपल है भाई, एलिमेंट नंबर 1 यानी इंडेक्स 1, एलिमेंट नंबर 2 यानी इंडेक्स 2. हम तीसरे की बात कर रहे थे, तो थर्ड मीन्स 14. देख लो ना रन करके, मेरी क्यों मानोगे तुम. चलो आ गया 14. ठीक है जी, याद रहेगा ये. इंडेक्सिंग बिगिंस एट 1 इन आर. तो जो आप लोग सी में और जावा में पढ़े हो उसे भूल जाओ थोड़ा सा. इंडेक्सिंग बिगिंस एट 1, आगे पाइथन आएगा उसमें फिर 0 से है, फिर कंफ्यूज होगे, मजा आएगा. when say you need to index multiple elements यानी you need to index more than one element. मेरे को एक एलिमेंट 1 चाहिए, एक एलिमेंट 4 चाहिए. समझ पा रहे हो, एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 4 चाहिए, तो वो दोनों को मैं कैसे मेंशन करूंगा. आई विल मेंशन देम लाइक वेक्टर ऑफ लोकेशन, वेक्टर ऑफ इंडिसेस, स्क्वायर ब्रैकेट में combined and the number of those values 1 and 4. ये भी ठीक है. ये बिना कंबाइन किए नहीं आएगा, बिना कंबाइन किए ट्राई करके देख लो ना देवेश. इफ यू डोंट कंबाइन वो एरर देगा. दिस इज नॉट द वे टू इंडेक्स वेक्टर. इनकरेक्ट नंबर ऑफ डायमेंशंस बोल के वो एक एरर दे देगा. अगर आप ऐसा कर रहे हो 1,4 and you enter, it will give an error because this is the syntax. स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ दिस कॉमा दिस, तो आर को उससे क्या समझ आता है, दिस इज नंबर ऑफ रो एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम. एक्चुअल जब डेटा सेट होगा इट विल बी अ 2D स्ट्रक्चर, तो उनको एक्सेस करने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं 1,4, तो इट मीन फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम. लेकिन अब वेक्टर में तो रो और कॉलम कुछ है नहीं, इसलिए वो एरर दे रहा है. सिंस मेरे को तो मल्टीपल एलिमेंट्स एनीवे चाहिए, तो मैं कॉम्बिनेशन दे देता हूँ. नाउ इट इज ओके. ठीक है, तो 2D स्ट्रक्चर में वो काम आता है. देन देयर इज वन मोर वे ऑफ इंडेक्सिंग, एंड विच इज रादर मोर प्रैक्टिकल. सी, अभी इस वेक्टर में कितने वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं. सपोज ये वेक्टर कुछ ऐसा होता जैसे लोगों की एज का वेक्टर हो, नॉट 30. सपोज इस तरह एम्प्लॉयज की एज का हो, और एम्प्लॉय कितने हैं किसी कंपनी में. एम्प्लॉयज मे बी फ्यू हंड्रेड्स और मे बी फ्यू थाउजेंड्स ऑल्सो पॉसिबल. Guys, this is where I want you to be super alert, please. This is something really important because this is going to stay with us for a long way, for a long time. Think about it. अगर मेरे पास ये 400 वैल्यूज हों, ऐसी 400 वैल्यूज हों, not these 4, I have 400 values. Where I'm getting with this is, प्रैक्टिकली मेरे को कोई ये नहीं बताएगा कि मेरे को थर्ड वैल्यू निकाल के दो, या मेरे को 100 वैल्यू चाहिए और 104 नंबर पे जो वैल्यू है वो चाहिए.
इस तरह से कोई बोलेगा नहीं मुझसे। मुझसे कोई क्या बोलेगा कि यार मेरे को उन लोगों की एज बताओ जो 50 से कम है, मेरे को वो नंबर्स बताओ जो 10 से नीचे हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। समझ पा रहे हो इसको? प्रैक्टिकली मुझसे कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को 33rd एलिमेंट चाहिए इस टेबल से। उसे क्या पता 33rd एलिमेंट कौन है? प्रैक्टिकली मेरे सामने एक कंडीशन होगा, आई विल बी फेस, मेरे को कोई कंडीशन बताएगा कि यार मेरे को वो एज बताओ जो 50 से कम कम लोग हैं, मेरे को वो वैल्यूज बताओ जो 10 से कम है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ इंडेक्सिंग एंड विच इज बाय फार मोर प्रैक्टिकल। मुझसे क्या बोला है किसी ने, माई वेक्टर, कि मेरे को माई वेक्टर की वो वैल्यूज चाहिए। कौन सी वैल्यूज चाहिए? इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग पे आ गया। और मैंने क्या बोला, पहले तो ये देखो, मुझसे कोई अगर बोल दे मे बी यू हैव टू टाइप इन दिस, पता नहीं आपके उसमें टाइप इन है कि नहीं है, आई थिंक है कि नहीं है, जरा बताओगे जल्दी से। नो शुभम, यू डोंट हैव एनीथिंग यू डोंट हैव एनीवे एनीथिंग टाइप्ड इन। आई एम आस्किंग अबाउट these guys, जिनको मैंने कोड भेजा था ये पहले। ओके, so just type it in and check what happens with this. Check with this. I'm calling it condition based indexing, as we call it. तो थिंक अबाउट इट, क्या आंसर आने वाला है इसका? मेरा वेक्टर, वेक्टर में 4 वैल्यूज, आई एम कंपेयरिंग दिस एंटायर वेक्टर विद ग्रेटर देन इक्वल टू 10। व्हाट डज इट मीन? व्हाट विल इट रिटर्न? Yes, a logical output comes in. What it is doing, it is comparing each value with the index given. ठीक है जी, याद रहेगा, आर में सारे फंक्शंस इंडेक्स वाइज होंगे। मैंने इस वेक्टर को कंपेयर किया तो इंडेक्स नंबर 1 को उसने कंपेयर किया, उसका आंसर, फिर इंडेक्स नंबर 2 को कंपेयर किया, उसका आंसर, इंडेक्स 3 एंड सो ऑन। करेक्ट? व्हाई इट इज हैपनिंग दिस वे? बाकी अगर कोई लैंग्वेज देखी होगी उनमें ऐसा नहीं होता। अगेन आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स, आर इज मेंट टू डील विद डेटा सेट्स। सपोज अगर मेरी इस कॉलम पे कुछ कंडीशन है, आई विल वांट नॉट टू बी अ सिंगल, मैं इस कंडीशन को बार बार ऐसे ऐसे कंपेयर करना नहीं चाहूंगा। आई वांट कि इसको मैं एक ही बार में कंपेयर करूं और मेरे को एक आंसर मिल जाए पूरा, विथ वी ईच वैल्यू ऑफ दिस कॉलम, मेरे को एक नया कॉलम मिल जाए जिसमें मेरी कैलकुलेशन का आंसर आ रहा हो, मेरे कंपैरिजन का आंसर आ रहा हो। इसीलिए तो आर है। व्हाई आई विल डू द टफ जॉब व्हेन आर इज देयर टू डू दैट फॉर मी। नाउ द फन पार्ट,
थिंक अबाउट इट, इसका आंसर आया फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. तो दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ इंडेक्सिंग जो मैं बताने वाला था. अगर मैं ये कंडीशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दूं तो आर को समझ आता है मैं कहाँ इंडेक्स करना चाह रहा हूँ. मेरे को ये नंबर नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता कि ये कंडीशन कहाँ पर ट्रू है, लेकिन जहां पर भी ट्रू आ जाए, जहां पर भी इसका आंसर ट्रू आ जाए, ये नीचे जहां जहां ट्रू आया है, बस वो वाली वैल्यूज मेरे को इंडेक्स करके दे दो. इसका मतलब ये हुआ. समझ गए वरुण? ऐसे हो रहा है ये. Here it is at the chat box. Shubham and Mansi, I have dropped it in the chat box. You can copy paste from it. Very fine. This much. Everybody, everybody with me so far. It is not very tricky. It is just that it is important. So that's why I wanted you to. Then there is something called negative indexing. When we use the square bracket tab index value, I think tab indexed value. I don't know what that is. Just keep it simple for now. Parentheses means function. Square bracket means location. Location can be done by location can be given in many ways. It can be just a integer, straightforward, or it can be a condition. Then there is negative indexing, we call it, or it is also called stripping of a vector. Yes, Siddharth. It is kind of you can call it like a subset of vector. I am subsetting the vector. My vector minus 3. Now what minus 3? Minus 3 signifies अगर मैं देता 3, what does it mean? I want the third element only and nothing else. When I say minus 3, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी पढ़ रखा है उसे पीछे रख दो थोड़ा सा. आर में सारे काम ऐसे नहीं होंगे ये पाइथन जैसे, वो पाइथन में होता है. माइनस 3 का मतलब हुआ एनीथिंग विल डू बट नॉट थर्ड एलिमेंट. बाकी सब चाहिए, बस थर्ड एलिमेंट नहीं चाहिए. इन दैट सेंस इट इज माइनस 3. थिंक अबाउट इट, क्या आना चाहिए अभी? माइनस 3 कह रहा हूँ मैं, क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? यस एग्जैक्टली, नाउ यू आर गेटिंग इट. बढ़िया. थर्ड एलिमेंट छोड़ दिया, दैट वाज 14. उसको छोड़ करके बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे. So that's negative indexing.
Okay, one more thing to pay attention to is this my vector thing. What is happening is ये -3 करने से आपने देखा एक एलिमेंट ड्रॉप हो गया। एक एलिमेंट ड्रॉप हो गया, कहाँ से ड्रॉप हो गया? जस्ट प्रिंट से ड्रॉप हुआ है वो। व्हाट आई वांट टू शो यू इज कि मेरा वेक्टर जो था, ये -3 करने से मेरे वेक्टर में चेंज नहीं आया है। ये जो यहाँ पर एनवायरनमेंट में जो डेटा मेरा सेव हो रहा है, ये जो वेक्टर बनाया था कहाँ गया माई वेक्टर, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है। इफ आई प्रिंट माई वेक्टर इट इज स्टिल द सेम। तो ये -3 करने से रिजल्ट सिर्फ प्रिंट में इंक्लूड नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो? सिर्फ जो मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ वो डिफरेंट आया है। एक्चुअली मेरा डेटा चेंज नहीं हुआ है, डेटा अभी भी सेम है। इफ यू रियली वांट टू चेंज इट देन यू हैव टू असाइन इट। बिना असाइनमेंट के कोई चेंज नहीं आएगा। ट्राई टू डू दिस, जस्ट सी व्हाट हैपेंस, रन इट फॉर योरसेल्फ। Shubham, you don't have to type it. Here it is. Shubham and Mansi. Mansi, you are running along. I don't see Mansi even in the participant list. Okay. You see what has happened? Realize the difference? दिस टाइम आपने क्या बोला है कि थर्ड एलिमेंट छोड़ दो माई वेक्टर में से और जो बचा है उसे प्रिंट नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम उसको? हम कह रहे हैं उसको असाइन कर दो एक नए वेरिएबल पे न्यू वेक्टर। तो एक नया वेक्टर बनेगा जिसमें थर्ड वैल्यू छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज अवेलेबल होंगी। नाउ डू वन मोर थिंग, डोंट सेव इट टू न्यू वेक्टर, सेव इट टू माई वेक्टर इटसेल्फ एंड सी द डिफरेंस क्या होता है। ये न्यू वेक्टर नहीं बनाना, यहाँ पर इसका नेम माई वेक्टर ही कर दो और देखो क्या होता है। नॉट न्यू वेक्टर, माई वेक्टर ही कर दो इसका। यहाँ एंड सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम। यस, वेरी फाइन, यू रियलाइज दैट। तो अगर मेरे को चेंज करके कोई नया वेरिएबल बनाना है, आई कैन गिव अ न्यू नेम। अगर मेरे को सेम वेरिएबल में ही चेंज लाना है, आई कैन जस्ट असाइन इट टू द सेम नेम। तो वही वेरिएबल ओवरराइट हो जाएगा। फाइन, बढ़िया। ठीक है जी, यहाँ तक बढ़िया, क्लियर। Then there are vector operations. Now this must be pretty simple by now. What is this coming from? Remove this. Remove this piece if it is there in your code. You do not need it for now.
Yes, Prasoon, that is something, very pinching about R, that if you have ran a code and that code has made a change to your variable, you cannot undo that. पता है फिर क्या होगा? फिर ऊपर से डेटा रन करते हुए लाओ कोड, जहां वो डेटा बनाया था, जो भी ऑपरेशन तुमने किए थे। अरे बड़ा मजा आता है जब ऐसा होता है। 2000 लाइन का कोड लिख रखा है और उसके बाद कुछ गलत हो गया, तो पूरा कोड दोबारा रन होगा। Okay, so this is vector operation. There are two vectors. One vector is 1357. Maybe you can call it odd vector. Then there is another vector which is 2468. Maybe you can call it even vector. And then I am adding these two vectors. Think about it, क्या आंसर आना चाहिए? One vector is this, one vector is this, and I am adding these two vectors. Just don't run and think about it. क्या हो जाना चाहिए? अभी हमने बात किया था that all the function, all operations of R will happen index wise. ठीक है, checked it, समझ आता है ये? Nothing very tricky about it. इंडेक्स वाइज इसका इंडेक्स नंबर 1, इसका इंडेक्स नंबर 1 वो बन जाएगा एडिट वेक्टर का इंडेक्स नंबर 1। इंडेक्स 2 प्लस इंडेक्स 2 वो बन जाएगा एडिट वेक्टर का इंडेक्स 2। एंड सेम फॉर इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4। तो क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए, वही हो रहा है। 1 2 3 3 4 7 5 6 11 7 8 15। एरर देना चाहिए क्यों? एरर क्यों देना चाहिए भाई? क्या बिगाड़ा मैंने? ओके ओके पीपल, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम and we will continue about. There are some theoretical concepts which I need to cover now. That's nitty-gritty of coding और थोड़ा सा theory करते हैं, ठीक है? ज़्यादा overdose हो जाएगा otherwise. So it's 11:59 by my clock. Let's resume at 12:10. That will do. Just good. Okay, people. Let's resume then. So the code is with you. I'm assuming my vector greater than equal to 5. हम देख चुके हैं क्या होता है इससे। एक वेक्टर है which contains 5 values and these are essentially odd numbers in random order. We create the vector and I am calling it, I'm putting a condition greater than equal to 5. You realize what will happen? क्या result आने वाला है? It will compare 5 with each element and give true and false basis the value it is comparing. Then there are some general functions like min. क्या करता होगा ये? Very intuitive. The function name is min. Min parentheses में my vector. It will return the minimum value from the set of values. So it is telling you what is the minimum value. Same can be done with max. Try it yourself. What does max does? Max
maybe you can try it yourself and see what is the max value, क्या आना चाहिए. You may say कि ऐसा min और max ये दिखाई तो दे रहे हैं, max is 9, minimum is 1. तो ये फंक्शन लगा लगा के क्यों देख रहे हैं हम, क्यों देख रहे हैं हम? Ease of doing, okay. और कुछ बात, ये ऐसा देख रहे हैं हम because this is a vector of 5 elements. This vector could have been of 500 elements. ये कब तक मैनुअली देखूंगा मैं? Yes, exactly Siddharth. Then there is sort function. और क्या करता होगा ये? वही जो नाम है इसका. एक वेक्टर को अरेंज कर देता है, ये सॉर्ट कर देता है. सॉर्ट इन व्हाट ऑर्डर? Yes, essentially ascending order, or maybe we can say increasing order, minimum first and greater, and finally the max value. Now I am asking you that I want it in descending order. Can it be done someday? See, these are the things which are cue to get thinking. हमें एक चीज पता है, sort function sort कर देता है. It sorts out a set of values in ascending order by default. Now मुझसे कोई कह रहा है कि descending order में करना है, तो मेरे को ये समझ आने लगना चाहिए कि sort function यार काम तो करता है. Let's see its help. Is there a facility that it can do the sorting my way? तो हम sort function का हेल्प डॉक्यूमेंट चेक कर लें और देखते क्या है उसमें, क्या कुछ फैसिलिटी उसमें है ऐसी. हेल्प डॉक्यूमेंट क्या बताता है? इट टेल्स यू कि ये फंक्शन क्या है, इस फैमिली के और फंक्शन क्या है, सॉर्ट डॉट इंट एटसेट्रा, एंड व्हाट कैन बी द वेरियस पैरामीटर्स व्हिच यू कैन गिव. सॉर्ट में हम क्या क्या पैरामीटर्स दे सकते हैं? देयर कैन बी एक्स, देयर कैन बी डिक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स एंड समथिंग समथिंग, दुनिया भर के आर्गुमेंट्स हैं. और इन आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है? एक्स आर्गुमेंट, वहां पर हमें क्या देना होता है? बता रहा है वो आपको, सब चीज बता रहा है क्या हो सकता है. इट कैन बी अ न्यूमेरिक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर लॉजिकल वेक्टर. तो वो वेक्टर तो हमने दे दिया, माई वेक्टर 1. और क्या कह रहा है, और फैसिलिटी आप क्या दे सकते हो? देयर इज अ डिक्रीजिंग पैरामीटर विच इज बाय नेचर अ लॉजिकल वैल्यू. लॉजिकल वैल्यू यानी ट्रू और फॉल्स. सब चीज लिखी हुई है, आराम से पढ़ के देखोगे सब समझ आएगा. इससे क्या पता चलता है? शुड द सॉर्टिंग बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अब नाउ होता क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसने सिंटैक्स में दिखाने के लिए, दीज आर डिफॉल्ट वैल्यू. तो डिक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स में लिखूं या नहीं लिखूं फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही है.
बट अगर डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू कर दूं तो क्या होता है, माय वेक्टर पैरामीटर क्या कह रहा है, क्या आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, मैंने कहा फॉल्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं चाहिए, तो क्या ऑर्डर प्रिंट होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, वो तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, मैं बताऊं या ना बताऊं, ठीक बात है। अब की बार मैं क्या कह रहा हूँ, मुझसे पैरामीटर ने पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, मैं कह रहा हूँ यस ट्रू चाहिए, एंड दिस टाइम इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है जी। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा देख करके लग रहा है कि ये फंक्शन है लेकिन वैसा काम नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गो फॉर इट्स हेल्प डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, यहाँ तक बढ़िया, ठीक ठाक है। वरुण, इट इज बिकॉज अपना एनवायरनमेंट चेक करो, वहां पर एक टी वेरिएबल बन गया है क्या, चेक यहाँ पर इन योर एनवायरनमेंट, इज देयर अ वेरिएबल टी, कैपिटल टी, और उस पर कुछ वैल्यू असाइन है। हाँ, तो पता है क्या हुआ है, टी इज अ स्पेशल कीवर्ड विच रिप्रेजेंट्स ट्रू, लेकिन आपने उस पे उसको एक वेरिएबल बना दिया, तो अब आर को समझ नहीं आ रहा कि वो ट्रू कहाँ से लाऊं, उसके लिए टी का मतलब वो वैल्यू हो गई है जो एनवायरनमेंट में रखी है। तो व्हाट यू कैन डू इज you can remove that variable from environment, just type rm bracket, rm is the function to remove something from environment, and remove t, मेरे उस पे नहीं है तो मेरे को वार्निंग दिखा रहा है, तुम्हारे उसमें हट जाएगा। ओके, well guys, this brings us to the conclusion of introductory R, not introductory but nascent R. What we have learned is a quick summary. What we have learned so far is the data types which are present in R, and they are present in a preference order: character, most preferred, then numeric, then logical. Characters are represented by double quotes or maybe single quotes. Any will do. Double quotes is the professional way. Then we saw data structures. Data structure, we have seen just one for now, a vector. Vector is just like a column in a dataset, a single linear set of values. Several values can be there. We saw some basic operations on them. Siddharth, you are very welcome to try. Why don't you give it a try? See what happens for yourself. Now, coming on to some concepts before we move on from vectors. In the data science language, I don't know if we talked about this, columns are referred as variables and rows are referred as observations. So this is the terminology by far we will be following. So when I say variables, I mean to say column headers of a data set.
When I say observations, it means rows, the observations. So we are getting on to, while dealing with data, what are the types of variables you will come across. So enough coding today. We will cover this some theoretical concepts. Say there is a data set. I hope the screen is visible, readable. Fine. Yeah, sometimes when we change tool, it freezes. So it's okay. Say there is a data set maintained by a HR department of an organization about their employees. तो क्या क्या कॉलम हेडर होंगे? एसेंशियली मैं कह रहा हूँ वेरिएबल्स. अगर एक्सेल शीट में मान के चलते हैं, अभी कोई सर्वर वगैरह भी नहीं बना रहे, वो एक्सेल शीट ही भर रहे होंगे, तो कैसा होगा ये डेटा सेट? क्या क्या चीजें रिकॉर्ड कर रहे होंगे ये इस बारे में, एम्प्लॉय के बारे में? जस्ट अ फ्यू क्विक सजेशंस. क्या बात कर रहे हो? ओके चलो तुम्हारी मान लेते हैं. एम्प्लॉय आईडी, क्या बात, कभी जॉब की है क्या तुमने देवेश सुमित? ये तो सताए हुए लोगों की आवाज लग रही है. हाँ एम्प्लॉय आईडी, जो वो गले में पटा टटाए घूमते हैं ऑफिस में, जिन्होंने जॉब की होगी उन्हें पता होगा. ओके ओके. एम्प्लॉय आईडी, मे बी एम्प्लॉय नेम, मे बी डिपार्टमेंट. ओके एंड ओके देवेश, यस परफेक्टली. मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैसा रोकड़ा मनी भाई कितना लेता है? और क्या हो सकता है? मे बी डेजिग्नेशन, एनीथिंग एल्स? और भी कुछ हो सकता है? ओके. वो किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, उसका मैनेजर कौन है, मे बी वेरियस कॉलम्स. तो व्हाट आर दीज कॉलम हेडर्स? इन्हीं को हम बोल रहे हैं वेरिएबल्स. ठीक है जी. नाउ कमिंग ऑन टू, हमें बात करनी थी कि क्या क्या टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं. सी दीज आर जस्ट डेफिनेशंस, बट यू शुड नो कि हम कब किसकी क्या बात कर रहे हैं. आई थिंक वी एस्टेब्लिश दैट इन एसक्यूएल पार्ट. जब मेरे को एम्प्लॉय नेम पता है तो अलग से एम्प्लॉय आईडी की क्या जरूरत है? एम्प्लॉय आईडी क्या होता है? एक रैंडम सा नंबर, पता नहीं किस ऑर्डर में क्या किस हिसाब से वो जनरेट होता है, बट वो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में. वाई? हाँ मतलब क्या जरूरत है, वही कह रहा हूँ, ये खर्चे का काम है भाई. अननेसेसरी एक डेटा, अननेसेसरी एक एक्सरसाइज, फिर आई कार्ड बनेंगे छपेंगे. व्हाई इट इज बीइंग डन? इतनी माथा बच्चे क्यों? यस एग्जैक्टली, बिकॉज एक ही नाम के एम्प्लॉय बाय चांस एक ही डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, सेम सैलरी भी ले रहे हो सकते हैं. आई नीड समथिंग, एन एंटिटी, टू आइडेंटिफाई इट यूनिकली. यस, यूनिक आईडी इज द प्रॉपर वर्ड वी कॉल इट. तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड, यू नो दैट, मालूम है, प्राइमरी की. अरे देखे तो थे.
primary key or unique key we call it. So this type of variable is primary key or unique key. For example अगर मैं बोलूँ तो like just अभी हमने जो देखा employee ID. So this is one type of variable. What can be other types of variables? Other type of variables can be categorical variables. Categorical variables in the sense on the basis of which I can categorize my data. I can categorize the population of this data into several subsets. For example, yes, it can be gender, male and female. I can subset the entire population into two. It can be marital status, married, unmarried, divorced. Again, I can categorize on the basis of that. So these are called categorical variables. अपने एग्जांपल में बात करें तो कौन है कैटेगोरिकल वेरिएबल? कोई दिख रहा है यहाँ पे आपको? Do you think name is categorical variable? Name is categorical. Yeah, not exactly. नेम सी नेम डुप्लीकेट हो सकता है बट इसके बेसिस पे कैटेगराइज करना कोई तरीका नहीं हुआ. नेम अगर डुप्लीकेट भी हो तो कितने लोगों का? 2 3 4 बस. मोस्टली नेम लोगों का यूनिक ही होगा. कुछ लोगों के डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे क्या मेरी कैटेगरी बनेगी? नॉट एग्जैक्टली. एनालिसिस फॉर दी कैटेगरी नहीं बनेगी. डिपार्टमेंट. कैन डिपार्टमेंट भी कैटेगोरिकल वेरिएबल? डिपार्टमेंट हो सकता है क्या? यस, डिपार्टमेंट हो सकता है. क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं किसी कंपनी के? ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, आईटी, एनालिटिक्स जहां आप जाने की कोशिश कर रहे हो, और कोई अकाउंट्स. ओके, हाँ, सैलरी भी देनी होती है किसी को. और कोई? ब्रांडिंग इज मोर और लेस मार्केटिंग. शुभम. अरे क्या हो गया? डिपार्टमेंट में नहीं खटक रहे क्या तुम लोगों को? यस, आर एंड डी. दैट्स pretty much जो अभी तक नहीं आया था. यस, आर एंड डी डिपार्टमेंट. इफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देयर हैज टू बी अ डिजाइन डिपार्टमेंट. और फाइनली निकम्मे लोग जो काम नहीं करते लेकिन रखने पड़ते हैं. है तो नहीं कोई यहाँ लीगली एचआर का? चलो अब तो हो गया. अब तो जलालत हो गई. हो गई तो हो गई. पहले सोचना चाहिए था यार मेरे को. चलो कोई बात नहीं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश हियर इज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज में भी हंड्रेड्स और मे बी थाउजेंड्स, डिपार्टमेंट यही 10 12 15 रहने वाले हैं घूम घाम पे. यस और नो? तो मेरी पॉपुलेशन कितनी भी क्यों ना हो इस डेटा सेट में, उनकी कैटेगरीज यही 8 10 11 बनने वाली हैं. एंड आई कैन डू दैट. So in that sense, department is categorical variable. Now within categorical, there can be several types. I am calling this nominal categorical variable. For example, just like which we saw, department. Why it is nominal वो अभी समझ आएगा जब दूसरा समझेंगे कि ये उससे कैसा डिफरेंट है. Stay with me.
for a couple of minutes. So department is nominal kind of categorical variable. Okay ji. Salary, can it be categorical? No, think about it. Salary, if it is in form, अगर मैं सैलरी की बात ऐसे करूं 30 to 40 के, 30 to 50 के, 50 to 70 के, तो अब तो ये कैटेगोरिकल है. बट इफ अगर सैलरी हम जस्ट थिंक अबाउट इट, वो कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है. अभी ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा ऐसे एंटर नहीं करेगी. ऑर्गेनाइजेशन को तो पता है ना इसकी सैलरी कितनी है. इसकी सैलरी अगर इतनी भी हुई, ऑर्गेनाइजेशन को पता है, वो ऐसे ही एंटर कर लेंगे ना. रियलाइज द प्रैक्टिकलिटी. अप टू द प्रिसीजन ऑफ पैसा ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय की सैलरी पता होती है. वो क्यों ब्रैकेट में रखेंगे उसको. नाउ आई एम आस्किंग अगेन, कैन सैलरी बी कैटेगोरिकल? नॉट एसेंशियली. तो सैलरी अभी कैटेगोरिकल वेरिएबल नहीं है. दिस सैलरी, ये जिस एम्प्लॉय की है, देयर इज अ वेरी रेयर चांस कि किसी और बंदे की सैलरी बिल्कुल एग्जैक्टली इतनी होगी. और अगर दो लोगों की गलती से मैच हो गई इतनी, तो बाकी दो की बिल्कुल मैच नहीं होगी. वेरी वेरी रेयर चांस. तो कैटेगोरिकल तो नहीं हुआ. ओके, लेट्स कम टू डेजिग्नेशन. क्या डेजिग्नेशन कैटेगोरिकल है? डेजिग्नेशन कैसे होंगे? somebody is executive, somebody is team lead, somebody is manager, somebody is trainee, somebody is AVP, kind of. ऐसा ही तो होगा. Now tell me, on basis of these designations, can I categorize my population? Yes, now I can categorize. अब मुझसे कोई बोले कि कितने एग्जीक्यूटिव हैं हमारे यहाँ, कितने टीम लीड हैं, कितने मैनेजर हैं. Yes, I can categorize population with that. So designation again comes out to be categorical variable. Now having said that, ये categorical तो हैं, but within these categories there is an order also. Order in the sense, I know AVP is senior than manager, and manager is senior to team lead, and team lead is senior to executive, and executive is senior to trainee. Correct? There is a proper hierarchy to it. Yes, hierarchy is the word. Getting the gist? There is an order also. So these variables are called ordinal variables. Ordinal categorical. E.g. designation. Now let's take a step back. मैंने बोला था डिपार्टमेंट इज नॉमिनल. थिंक अबाउट इट. Department is categorical, but can I say in any sense that IT is better than ops? Can I say in any sense that analytics is greater than sales? Not exactly. So that is why there is no order. There are just plain categories. So these type of variables are nominal. When there is categories as well as there is an order, we call it ordinal categorical.
यहाँ तक क्लैरिटी? ओवरफ्लो होने लगे तो बता देना, ठीक है? ओके, देन देयर इज समथिंग। अरे जरा बताना कितने लोग जॉब में हैं या थे कभी? ओके, देवेश इज क्विक। ओके, ओके, तुम लोगों को समझ आएगा। सपोज दे आर रिकॉर्डिंग PYR ऑल्सो। PYR क्या होता है? PYR या PAR? पता नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं इसको, वेरी पॉपुलरली इसको PYR बोलते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में। AR या एनुअल रेटिंग भी बोलते हैं इसको, नॉट रेवेन्यू एक्चुअली, रेटिंग। जो एम्प्लॉय होंगे उन्हें पता होगा, एक रेटिंग मिलती है ना मैनेजर से ईयर एंड पे। हाँ, रिव्यू बोलते हैं कुछ लोग उसको। 1 to 5 के स्केल पे आपका मैनेजर आपको रेट करता है, उसी के बेसिस पे सारे अप्रेजल प्रमोशन सब कुछ होता है। और ये रेटिंग हमेशा 3 ही आती है, चाहे ध्यान दे दो तुम कंपनी के लिए, है ना? याद आ रहा है ना वो काला दिन? हाँ ठीक है देवेश, रेटिंग फिर तुम्हारी so that is as good as rating 3. Doesn't matter what they rate you. Okay, so suppose they are recording this data also. क्या employees की recording rating कैसी थी last year? Somebody was 4, somebody was 2, somebody was 5, 1, 3. Now think about it. These are 5 categories. 1 to 5, मैं मान के चल रहा हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन 1 to 5 रेट कर रही है, ऐसे ही करते हैं मेजरली। तो अगेन, इज दिस कैटेगोरिकल? कैटेगरी तो मैं अभी भी बना सकता हूँ। वेरिएबल तो कैटेगरिकल है ये, तो नॉमिनल तो क्वालिफाई कर दिया इसने, नॉमिनल तो ये हो सकता है। अब देखते हैं ऑर्डर इसमें है क्या, क्या ऑर्डर है इसमें? यार पहले तो कैटेगरी समझो, कैटेगरी बनेगी ना। मेरे नालायक एम्प्लॉय कौन है? ये वाले 1 रेटिंग वाले, 2 वाले। हमारे काबिल एम्प्लॉय कौन है? ये 4 रेटिंग वाले, 5 रेटिंग वाले। तो कैटेगरीज तो मैं बना सकता हूँ, मुझसे कोई बोल दे कि मेरे को देखना है जरा हु आर द परफॉर्मेंस वर्दी, प्रमोशन वर्दी एम्प्लॉयज। यस, आई कैन कैटेगराइज। इज देयर एन ऑर्डर ऑल्सो? यस, देयर इज ऑर्डर ऑल्सो। वो तो वैसे ही दिख रहा है, और हमें मालूम है 5 इज बेस्ट, 5 इज बेटर देन 4, बेटर देन 3, better than 2. There is certain order. But then there is one certain thing extra here in PYR. What is that?
Within the order, I have a scale also, a tangible scale. Scale in the sense, the constant interval. मुझसे कोई बोले 3 is better than 1. Yes, of course, third rated employees are better than 1 rated employee. But by how much? By how much? By 2 units. 4 rated employees are better than 1 rated employee. But by how much? By 3 units. Getting the gist? I have a scale also. इस ऑर्डर में एक स्केल भी है, एक इंटरवल है, कांस्टेंट इंटरवल, जिससे मेरे को ये पता चल रहा है दिस इज बेटर देन दैट, बट बाय हाउ मच यूनिट्स, बाय व्हाट स्केल. इज इट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? यस, इट इज एक्स्ट्रा. जस्ट लेट्स गेट बैक अगेन. मैं आपसे बोल रहा हूं मैनेजर इज सीनियर देन एग्जीक्यूटिव, बट हाउ मच? ये इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं यहाँ पे. एग्जीक्यूटिव से टीएल सीनियर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कितना? देयर इज नो स्केल. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. यू आर गेटिंग द जिस्ट, यू आर गेटिंग द आइडिया. ठीक है, तो ऑर्डिनल में ऑर्डर तो पता है लेकिन स्केल नहीं है. लेकिन जब ऑर्डर भी है और स्केल भी है, लाइक दिस वन PYR, then we call it interval variable, interval categorical, like EG, what do I call it? क्या बोल रहा था मैं इसको? चलो annual rating हो गया, annual rating of employees. Let's stick to the same example. ठीक है जी. तो categorical variables are broadly have 3 subcategories: nominal, ordinal, interval. आपने अभी देख लिया, अगर इंटरवल है तो उसमें ऑर्डर भी होगा और नॉमिनल तो होगा ही होगा. ऑर्डिनल है उसमें कोई इंटरवल नहीं होता, लेकिन नॉमिनल तो वो भी होता है. हाँ, काइंड ऑफ लेवल 1 लेवल 2 अगर ऐसे समझना चाहते हो, यू कैन कंसिडर इट लाइक दैट. ठीक है जी. तो एक तो आपके डेटा सेट में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, आपके डेटा सेट में प्राइमरी की, यूनिक की हो सकता है. देन देयर आर थर्ड काइंड ऑफ वेरिएबल, वी कॉल देम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. नाउ हु आर दे? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स कौन हुए? सी, एनालिसिस इज ऑल अबाउट नंबर्स. इट विल ऑलवेज बॉइल डाउन टू नंबर्स. नंबर्स इन द सेंस highest salary, lowest salary, average salary, average salary in particular department, in particular segment of population, total salary, total amount we are paying to our employees, working hours, हमारे एम्प्लॉय कितना घंटा काम करते हैं. So it is eventually numbers, sum of something, average of something, max of something, minimum of something, count of something, frequency of something. और क्या एनालिसिस होगा? जस्ट इमेजिन इफ देयर आर नो नंबर्स, क्या एनालिसिस करोगे? ठीक है जी. तो इवेंचुअली योर एनालिसिस इज ऑल अबाउट नंबर्स. तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. लाइक सैलरी, सैलरी इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. इनकी पहचान क्या होगी? अब इनकी पहचान क्या होगी? कैसे पहचानोगे कौन सा वेरिएबल है? जस्ट इमेजिन अभी जितने नाम लिए मैंने, ये किन पे करोगे? ये ऑपरेशन किन पे होंगे? किसी चीज का सम कब होगा, किसी चीज का एवरेज कब देख पाओगे? जब वो नंबर होगी.
number यानी continuous, as simple as that. So there are broadly two conditions. Continuous variable के लिए दो condition हुई, वो क्या क्या हुई? They are always numbers. उस वेरिएबल में हमेशा नंबर ही भरे होंगे. सैलरी, एज, प्राइस, सेल्स, सेल्स अमाउंट, फिर ऑलवेज नंबर्स. Second, so this is condition 1. They are always numbers. They should be always numbers. Second condition is, in these numbers, numeric operations should make sense also. अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है. They are always numbers. I think ये बात तो बैठ गई होगी, हमेशा नंबर होंगे. Then I am talking about numeric operations should be sensible also. तब उसे हम बोल रहे हैं continuous variable. तो ये दूसरी कंडीशन कहाँ से आ गई, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? हम कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, अगर नंबर हैं तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होंगे. अच्छा, जरा बताना. मोबाइल नंबर इसका 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 सबके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं. एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जस्ट टेल मी द टोटल ऑफ मोबाइल नंबर्स ऑफ माय एम्प्लॉय. थिंक अबाउट इट. व्हाट सेंस डज इट मेक? आई होप यू आर गेटिंग इट. ये मेरा मोबाइल नंबर, ये तुम में से किसी का मोबाइल नंबर, और मुझसे कोई कह रहा है इनका एवरेज बताना जरा. सही बात है, समझ पा रहे हो? नॉनसेंस बात कर रहा हूँ मैं. दो मोबाइल नंबर का एवरेज क्या होगा? कुछ भी नहीं. तो नंबर होना ही काफी नहीं है. इट इज मोबाइल नंबर एसेंशियली इट इज दे आर रिप्रेजेंटेड एज नंबर. तो कंडीशन 1 तो ट्रू है इनके लिए, लेकिन कंडीशन 2 व्हाट अबाउट दिस? कंडीशन 2 फेल हो रही है, सो वी विल नॉट कॉल इट कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. अभी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है. सेम गोज फॉर एम्प्लॉय आईडी. इफ एम्प्लॉय आईडी इज इन नंबर्स, इसका भी यही मतलब है. देयर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल. यस और नो? आई होप इट मेक्स सेंस. एरिया पिन कोड. भाई ये सीपी का पिन कोड है, ये फरीदाबाद का पिन कोड है. इनका एवरेज देखने लगूं तो बदरपुर मिलेगा क्या? गेटिंग इट? सही बात है. So these are represented in numbers, but as number इनका कोई सेंस नहीं है. तो ऐसे वेरिएबल्स को हम एज नंबर ट्रीट भी नहीं करते हैं, हम इनको कैरेक्टर या कल देखेंगे फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं. Yes, exactly, Siddharth. We will store them as strings. We will treat them like just a character, because this area code is not actually number. It is representing that area's name in digits. If that analogy works for you for now. This mobile number can be just a unique ID, kind of unique ID for my employees. It is not this number.
वेरी फाइन। तो कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्लियर हो गया। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हम किनको मानेंगे? दे आर ऑलवेज नंबर्स एंड न्यूमेरिक ऑपरेशंस, न्यूमेरिक समरी अगर मैं उनकी निकालना चाहूँ, दैट इज सेंसिबल आल्सो, दैट मेक्स सम सेंस। It is not a it should not be a nonsense question, nonsense answer to a nonsense question. Now there are types of continuous variables. चलता रहूँ ना अभी? I will hardly take 5 more minutes. I hope अभी ओवरफ्लो तो नहीं हुआ? चल जाए आगे थोड़ा सा बस। Okay. Okay. Fine enough. That's enthusiastic. So just like जैसे categorical में there are types of variables, continuous में भी there are types of variables. We call them, one type is ratio, not ration. क्या लिख रहा हूँ मैं? Ratio. Or we also call them perfect continuous. Sometimes ratio is more popular name. So what are ratio variables? Ratio variables, for example सैलरी, अभी देखा था हमने, उसी को बोल रहे हैं रेशो वेरिएबल। किसको बोल रहे हैं हम रेशो? दैट सैलरी कैन हैव डेसिमल पार्ट। यस, पॉसिबल। सैलरी में डेसिमल पार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जब डेसिमल पार्ट हो सकता है, नाउ पे अटेंशन टू दिस वन, अगर डेसिमल पार्ट हो सकता है, देन इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू इंटीजर्स। Yes or no? I'm saying it can have fractional part. So between two consecutive integers, it can have infinite number of values. इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर एक की सैलरी 30,025 है, एक की सैलरी 30,002 है, एक की सैलरी 30,000.00025 है, कुछ भी हो सकती है। फिर अगर डेसिमल अलाउ कर दिया, देन स्काई इज द लिमिट, फिर तो कुछ भी फ्रैक्शन आ सकता है। उन्हीं को हम बोल रहे हैं रेशो वेरिएबल या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू बिटवीन टू एनी वैल्यूज, एनी टू वैल्यूज। दूसरा कौन होता है फिर? दूसरे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किसी ने पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत तो? डिस्क्रीट, करेक्ट। शुभम, आई रियलाइज you are from something is the background here. कुछ तो पढ़ रखा है या सीख रखा है। ओके, चलो, दैट सीम्स गुड। अरे मैकेनिकल इंजीनियर है तू? हमारी तादाद बढ़ती जा रही है मार्टिकस में, मैं भी हूं ना। ओके, चलो ठीक है। रेशो जहां पर डेसिमल फ्रैक्शन अलाउड है, डिस्क्रीट जहां पर डेसिमल फ्रैक्शन नहीं हो सकती। इट इज एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं इसको? फॉर एग्जाम्पल अपने डेटा में सपोज दे आर रिकॉर्डिंग, ओके, सपोज दे आर रिकॉर्डिंग कि इस बंदे को कितने लोग रिपोर्ट करते हैं। किसी को कोई नहीं करता, किसी को 2 करते हैं, किसी को 5 करते हैं, किसी को 3 करते हैं, किसी को 10 भी करते हैं। वीपी है वो। जस्ट इमेजिन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस, so don't try to fit in everything, but I am just, now think about it, नंबर ऑफ रिपोर्टीज इस आदमी के या तो 10 होंगे या 11 होंगे। इट कैन नॉट बी 10.5, इट कैन नॉट बी 11.2। I hope you are getting the gist, getting the difference. And yet it is continuous because yes, I can analyze,
मेरे से कोई पूछ सकता है कि कौन है जिसको सबसे ज़्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं? ऐसा कौन है जिसको एक भी आदमी रिपोर्ट नहीं करता है? यस, एनालिसिस तो हो सकता है, तो स्टिल इट इज कंटिन्यूअस. Mathematical analysis can still be done. It is just that it cannot have fraction value. Coming on to it, just in a moment. Let it sink in, Devesh. So discrete can be like, it can be like number of reportees. Yes, it can have either it will be 5 or it will be 6. It cannot be 5.4, it cannot be 5.45, it cannot be anything in between. So that's discrete. Now it brings us to the question. यहाँ तक ठीक है? बढ़िया सबको? अभी तो दिक्कत नहीं? It brings us to the question, suppose they are recording age. Age of their employee. Now tell me, is it ratio or is it discrete? Mhm. Anybody else has some idea? Somebody wants to contribute? Some people are contributing, others are like that, okay, keep doing damage by yourselves. I don't want to contribute anything. Not yet. Well, guys, it depends. It depends on the method of recording and the utility of recording. Remember, जब SQL में हम बात कर रहे थे, we talked about this, that a data warehouse has a predefined subject. A data warehouse is recorded on purpose. We already have defined for what purpose we are capturing this data. Now that defines whether this data we will record it like this, or maybe we will record it like, we will take decimal fraction for months. Maybe we need it to be recorded like that. So it depends. ठीक है? Depending on that, we will define it, that what kind of variable it is. So being analyst, again I will say, you are not going to presume anything. You are not going to assume that this is a continuous or discrete. No. If somebody is asking me the question whether this variable is this or that, what will you reply? Let me get my hands on the data. Let me see the data. Then I'll talk about anything. ठीक है जी? तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने डेटा किस तरह से रिकॉर्ड किया हुआ है, देन आई विल डिफाइन कि इसको मैं कैसा वेरिएबल मान के चलूं. ठीक है जी? आई थिंक फेयर इनफ. I think enough for today as well.
तो इतना कुछ था, कुछ ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए थे, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी बार बार सामने आती रहेगी कहीं ना कहीं। तो okay guys, very well then, let's keep it till here today itself. We'll connect tomorrow again, same time. Very well, till then, bye bye, take care.